नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब धन्य हो गए। डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग प्रमिला मेहता आंटी जी का लिखा हुआ है, जिनसे हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए उनसे बात करने में। तो आज का सत्संग, उनका सत्संग महाराज की कृपा से डॉक्टर नीलम सिंह आंटी और संगत पढ़ेंगी। गुरु परिवार की तरफ से डॉक्टर नीलम आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल और पूरी संगत को मेरी जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अपने गुणगान करवाने के लिए। कहते हैं गुरु का पाठ जो है सबसे बड़ा पाठ वही होता है जब गुरु की स्तुति की जाती है। और ये वो ब्लेस्ड सत्संग है जो गुरु जी महाराज ने अपने सामने खुद लिखवाए। संगत को बोला कि अब लिख कर लाओ, किसी को पेज पे लिख के लाने के लिए कहा, किसी को कहा किसकी सीडी बना के लेकर आओ। सो बहुत बहुत शुक्राना। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमिला मेहता आंटी का है, जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। सो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। With her blessings, her kidney grew in size. After she had an operation in a renowned hospital in New Delhi, Mrs. Pramila Mehta found herself battling for life. She had been suffering from high blood pressure since 1995. She had to undergo a hysterectomy, the surgical removal of the uterus, in July 2000. The doctors operated on her but neglected the blood pressure factor. After surgery, her blood pressure climbed to 180 mmHg by 120 mmHg and remained at this peak for 2 weeks. Her kidneys were damaged irreparably, so as it turned out. Her creatinine level went beyond 1.8, the high-end value for a healthy individual. Promila had entered a hospital hoping she would get cured, but came out with a bigger threat to her life. She developed chronic renal failure, which meant both her kidneys, the primary blood filters of the body, were malfunctioning. Promila did the round of doctor. She was treated in Bangalore, at AIIMS in New Delhi, at Kailash Hospital in Noida. She also went through Ayurvedic, homeopathic, and acupuncture therapies. Doctors said a kidney transplant was the only solution. 5 years after her problems had become acute, she came to know of Guruji through her colleagues. It was April 2005, but she reached Guruji's only on 21st July 2005. He must have willed her to come on that particular day, for it was Guru Purnima. So ये बात सच है कि जब गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है तभी वहां हम पहुंच पाते हैं, उससे पहले नहीं पहुंच पाते। Guruji asked her to bring a copper tumbler, which he blessed. She drank water from it every morning. She was able to visit Guruji for all of the 4 Sangha days, Thursday to Sunday, from July 2005 to December 2005. As soon as she started drinking the holy water and bathing with it, she noticed that her skin, which looked aged, especially around the neck, began to improve. One day, she was sitting next to Guruji. She told him that there was no blood in her body and that she felt miserable all the while. Guruji was just smiled at her and she kept quiet. On December 13th, she was suddenly woken up at 5 in the morning. Her nose felt sticky. She did not switch on the light but wiped her nose with her nightgown. She soon realized that water was still flowing from her nose. She switched on the light. To her surprise, her nose was bleeding and freely. One handkerchief was soon drenched with blood. She woke up her son and mother and child rushed to Kailash Hospital, Noida. Doctors tried to control the blood flow but could not and had to admit her. Promila called up her husband who was in Bangalore. It was 6:30 in the morning and she asked him to come to Delhi immediately. She had Guruji's photograph with her all the time she was in hospital.
it was found that the blood flow was related to the malfunctioning of the kidneys. To control the problem, Mrs. bottles of blood and 2 units of plasma were also transfused into her bloodstream. The color of her skin turned red as she had wished for a few days ago while sitting before Guruji. From pale yellow, if you ask Guruji for a thing and if it is for your good, says Mrs. Pramila, you will get it. So देखिए संगत जी, वही है कि जब भी हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं, पहली बात तो गुरुजी ने देखिए बहुत बार बोला कि हमें कभी भी गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। पहले भी कितने संगत में, सत्संग में ये चीज आई है कि जब हम कोई चीज मांगते हैं तो हम गुरु को एक तो बहुत छोटा कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी तो बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं और हम छोटी छोटी बातों को बोलते हैं कि हमें गुरुजी ये दे दो, हमें ऐसा कर दो, हमें वैसा कर दो। लेकिन गुरुजी देखिए एक हमारे ऐसे गुरु हैं कि जो हमारे लिए ठीक होता है हमें वही देते हैं। कई बार हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, तो कभी इनफैक्ट हमें ये चीज सोचनी ही नहीं चाहिए कि हमें ये चीज क्यों नहीं मिली, क्योंकि पहली बात तो उसका राइट टाइम नहीं है। आई थिंक जीतू अंकल के भी सत्संग में ये बात लिखी है कि जैसे कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष जो है जब आप उसके सामने खड़े होते हो तो आपको वो हर चीज देता है जो आप चाहते हो। आप अपनी इच्छा जाहिर करो, कल्प वृक्ष जो है आपको वो चीज दे देगा। लेकिन गुरु महाराज जी जो है आपको वही देते हैं जो आपके लिए जो है ठीक है। तो वही प्रमिला आंटी ने यहाँ बताया कि आपको वही चीज मिलती है जो आपके लिए ठीक है। The devotee came out of hospital in a week and could come to Guruji for his blessings again. He told her that both her kidneys were okay now and she had been blessed with a new life. तो देखिए जो अब ये प्रमिला आंटी हैं, कैसे देखिए इनकी जो है किडनी खराब हो गई। और वही होता है जब बंदा थक हार जाता है तो यही सोचता है कि कहीं से भी उसको इलाज मिल जाए। तो प्रमिला आंटी को भी जब उनकी कलीग ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कोई गुरुजी हैं, तो वो बहुत टाइम से परेशान हो रही थी। और देखिए कहाँ जहाँ पे इसमें लिखा है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुआ, फिर वो उनका बीपी फैक्टर जो है वो ठीक से देख नहीं पाए। तो एक्चुअली सारी चीजें डॉक्टर्स को देखना ही होता है, लेकिन हम खुद भी इस चीज को रियलाइज करें कि हम अपना भी खुद बहुत चीजों के लिए ध्यान रखें। तो उनका जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि मे बी उनको शायद हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, शायद इसीलिए उनकी ब्लीडिंग उस टाइम स्टॉप नहीं हुई। और जिस तरह से उनकी कंडीशन हो गई थी, उनको डायलिसिस पे रखा गया, तो अल्टीमेटली फिर ये था कि उनको एडमिट कर दिया गया। और उसके बाद फिर यही होता है कि हफ्ते में 3 बार या 4 बार डायलिसिस जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है जब पेशेंट इस तरह के होते हैं। और अल्टीमेटली पेशेंट को ये कह दिया जाता है कि अगर वो सच में अपनी लाइफ को बहुत जीना चाहते हैं तो वो जो है किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। और देखिए किडनी ट्रांसप्लांट कराना कोई इजी टास्क नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपका हर चीज मैच करनी चाहिए, क्योंकि अगर टिश्यू मैच नहीं करेंगे तो वो फेलियर में जा सकता है। और इनके तो देखिए क्रोनिक फेलियर हो गया था, दोनों किडनी फेल हो गई थी। इससे मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कि ऐसे ही, और देखिए ये गुरुजी जो हमारे कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आंटी का लिखा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसने क्या बोल रहे हैं, कुछ सच है या झूठ है, पहली बात तो वो झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने सामने ये बुक लिखवाई और उसके अंदर ये दर्ज किया ये सत्संग। तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज मैंने अपने मतलब खुद कानों से और आंखों से देखी। मेरी एक पेशेंट थे, पहले शी वाज जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी बन गए। और उसके बाद एक बार जब वो मेरे पास आए तो वो कुछ जिक्र कर रहे थे, तो मैं उनको ऐसे बता रही थी कि हमारे ऐसे गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने जैसे मुझे बोला था कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट को लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा। तो मैंने जो है सबने अपने सारे पेशेंट जितने थे उनको बताना शुरू कर दिया, अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक मैं सत्संग को शेयर नहीं करूंगी, कुछ गुरुजी के बारे में बताऊंगी नहीं, तो कैसे किसी को पता चलता। तो वो कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, क्योंकि वो उन्होंने काफी टाइम से वो आए नहीं थे मेरे पास। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा क्या बात है, तो कहने लगे डॉक्टर साहब थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। ऐसे उनके कोई नोन है कोई लड़की, एट दैट टाइम शी वाज इन कोलकाता। तो कहते हैं उसकी ना दोनों किडनी फेल हो गई है। तो ये पढ़ के मुझे वही ध्यान आ गया। तो कहते हैं कि मैंने तो उनको फिर बोला, मैंने कहा जैसे मुझे था कि गुरुजी ने भी कहा था कि अपने पेशेंट्स को लेकर आना, तो मैंने कहा भी देखो ऐसा है कि मैं तो हम तो हर चीज गुरुजी पर छोड़ देते हैं। ऑल दो डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपना काम करती हैं। तो आप जो हो, अगर
इफ इट इज पॉसिबल, क्या गुरुजी के आगे माथा टिका सकते हो? गुरुजी ने उस टाइम चोला छोड़ दिया था, तो उनको बड़ा लगा कि गुरुजी तो है नहीं, तो मैंने कहा भी गुरुजी के स्वरूप के आगे आप माथा टिका लो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये बात इसलिए शुरू की है, अगर आप हमें किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बता दो, हम लोग ओपिनियन लेना चाहते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो उनको मतलब उस टाइम गुरुजी से कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं था। उनको सिर्फ उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट्स बताई है इस बारे में बताया, वो सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि जो है गुरुजी अ, मतलब सॉरी डॉक्टर्स को वो दिखा सके। गुरुजी के लिए तो मैं उनको बोल रही थी। तो उनको मैंने कहा ठीक है, एक काम करना, अ, उस लड़की की ना फोटोग्राफ ले आना, और ना जब आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो मेरे हस्बैंड के रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो आप इतना कर सकते हो, मतलब मेरी इतनी बात अगर आप मान लो, उनका जो फोटो है वो गुरुजी के स्वरूप के आगे आप रख देना। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे सच बताऊं तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मानते हैं, तो मैं उनको बोल दूंगी अगर वो ऐसा कर सके। तो उसके बाद जो था वो उनको दिखाने के लिए गए, जो भी ओपिनियन उन्होंने लेना था। उसके बाद वो मेरे पास काफी टाइम तक नहीं आई, तो मुझे वही लगा, मैंने कहा पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ, या मतलब उनको लग रहा था मैंने पता नहीं कहाँ भेज दिया, क्या हुआ। जब काफी टाइम बाद तो मेरे पास आए और उनको मैंने बोला, पूछा कि भाई उस लड़की का क्या रहा, जिसकी किडनी फेलियर्स हो गई थी, और क्योंकि वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी, और डॉक्टर्स ने उसको कह दिया था कि इसके बचने के भी चांसेस नहीं है, और किडनी ट्रांसप्लांट की आई थिंक ट्राई कर रहे थे, वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा था उसका, और वो इनफैक्ट अपनी लास्ट स्टेज पर थी, और काफी यंग थी, मे बी शी वाज जस्ट आई थिंक 30+। तो जब वो गए वहां पर, और उन्होंने उस लड़की का जो स्वरूप, सॉरी, अब उसका जो फोटोग्राफ था गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा, तो उन्होंने कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नहीं पता, या ब्लेसिंग्स कह लो, कुछ कह लो, और हमें लगता है कि आपके गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि वो लड़की जो है उस दिन से ठीक होना शुरू हो गई। और उन्होंने फिर मुझे उसकी फोटोग्राफ दिखाई, कहते देखो ये लड़की बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक है, और कहते हैं आपकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज ये ठीक है। और आज जब भी वो मेरे को मिलते हैं तो हमेशा जय गुरुजी बोलते हैं। तो देखिए कैसे एक वो लड़की वहां पे गुरुजी के यहाँ गई भी नहीं, और कभी उसने माथा भी नहीं टेका, उसका खाली एक फोटोग्राफ जो था गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा गया था। तो बात वही है कि हम श्रद्धा से जब भी कोई भगवान के आगे प्रे करते हैं तो हमारी पूरी होती है, और वो लड़की बिल्कुल ठीक है। तो देखिए भाई आंटी आंटी के साथ हुआ कि जब उन्होंने लंगर प्रसाद खाना शुरू किया, सो क्योंकि प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी भाव से, बहुत प्रेयर होनी चाहिए, शायद उन्होंने बहुत भाव से गुरु जी के आगे हाथ जोड़ा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे उनको नई लाइफ मिली, और ऐसे ही बच्ची को भी लाइफ मिली। और लेकिन मैं इसके साथ एक और बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उस बच्चे की जो किडनी फेलियर हुई थी ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उसकी एक्चुअली कोई भी वो बहुत परेशान थी कि वो मदर नहीं बन पा रही है। तो उसके इस डिप्रेशन में ना उसका बहुत सिर दर्द रहने लगा था। तो जब बहुत उसका हेडेक रहने लगा, तो इंसान क्या करता है कि एक दवाई खा ली, क्रोसिन खा लिया, कोई हेडेक मतलब कुछ भी, कोई भी मेडिसिन खा ली। तो बाद में बात यही निकल कर आई कि वो इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी, उसका इतना हेडेक होता था, वो किसी को बताती नहीं थी, और चुपचाप जो है ना हर थोड़ी देर बाद उसने क्रोसिन खा लेनी, या कोई भी पेन किलर खा लिया करती थी कि उसका सर दर्द ठीक हो जाए। और जो सी किडनी फेलियर हुई, वो इसीलिए हुई कि इतनी सारी दवाइयां खाने पर जो उसने इतनी पेन किलर खाई। तो संगत जी मैं यहाँ यही बोलूंगी कि जब भी हमें कोई छोटी मोटी चीज तकलीफ हो जाती है, तो प्लीज एकदम से पेन किलर ना ना खाया करें, क्योंकि पेन किलर जो है देखिए किडनी पर एकदम असर करती है। और उस लड़की का जब किडनी फेलियर, दोनों किडनी जो फेल हो गई थी, वो ये उसका रीजन कुछ नहीं था, उसकी बाकी सब चीजें ठीक थी, सिर्फ उसका इतनी सारी पेन किलर्स खाई, उसके साथ दोनों किडनी फेल हो गई थी। बट गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गई। She continued coming to Guruji and having the langar, a very important part of Guruji's blessings. Guruji langar has tasty vegetables, chutney, pickles, and sweets. All doctors prohibit such a diet, but Mrs. Promila found that the food was easily digested and the whole of the next week passed comfortably. तो ये बात सच है कि जो गुरुजी का लंगर प्रसाद होता था, एक तो इतना ज्यादा टेस्टी होता था। सोचिए गुरुजी महाराज खुद साक्षात वहां जब सामने बैठे, तो उसमें कितना डिवाइन उसमें ब्लेसिंग्स मतलब होती होंगी। और बहुत सिंपल सा होता था, खाली सब्जी है, चटनी है, कभी अचार होता था, कभी नहीं होता था, और एक मीठा प्रसाद होता था। मुझे याद है कि एवरग्रीन के लड्डू जो है वहां पर काफी हम लोगों ने खाए हैं। और या तो लड्डू प्रसाद होता था या कड़ा प्रसाद होता था।
कभी कभी होता था कस्टर्ड का प्रसाद या खीर हमें मिल गई, पर ज्यादातर यही प्रसाद होता था। In February of 2006, she again fell sick and had to go through dialysis 3 times in Kailash Hospital. She managed to get an appointment with the head of the department of nephrology in AIMS. He suggested an ultrasound scan, revealing that if her ultrasound report was similar to the one obtained in August 2003, the doctors would pursue conservative treatment. Otherwise, if the kidneys had shortened further, then kidney transplant would become essential. Mrs. Mehta got her ultrasound done from a local lab on a Saturday. The report showed that both kidneys had become very small. तो देखिए कैसे उनकी जो किडनी है एकदम स्मॉल हो जाती है। और वही है कि जब एक नॉर्मल साइज नहीं रहेगा किडनी का, तो फिर वही होता है कि डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि आप जो है जाके ट्रांसप्लांट करवा लो। और वो उन्होंने यही बोला कि आपकी किडनी का हम देखेंगे, क्योंकि हर डॉक्टर वैसे तो यही चाहते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट हो वैसे तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता देन दे गो फॉर अ सर्जिकल। She came to Guruji and requested him to do something. Even though, according to the doctor, the only solution was a kidney transplant, Guruji again blessed her. तो देखिए यहाँ पर उन्होंने गुरुजी को आके दोबारा बोला कि गुरुजी आप प्लीज जो है सब कुछ ठीक करिए। और गुरुजी ने देखिए उनको फिर दोबारा ब्लेस किया और वो काफी ठीक हो गई। Promila got ultrasound done again the next Monday from the lab which had done it is in August 2003 as well. To her surprise, the size of the kidneys had increased. They were in the same size as the August 2003 ultrasound showed. तो देखिए डॉक्टर्स ने यही कहा था ना कि अगर वो किडनी आपकी पहले जैसी जो अल्ट्रासाउंड था उसमें कुछ ऐसा होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज आपका ट्रांसप्लांट होना मतलब निश्चित है। और इससे मुझे एक और भी याद आ रहा है, मुझे याद है एक बार मेरे किसी पेशेंट की अपॉइंटमेंट थी और उनको मैंने फोन लगाया कि आपकी अपॉइंटमेंट है और आप आए क्यों नहीं। तो वो कहती है डॉक्टर साहब बहुत सॉरी, लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ कि मेरी डॉक्टर से जो है मतलब उसके ऑफिस से फोन आया, उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और हम उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके गए। और जब हॉस्पिटल लेके गए तो पता चलता है कि सोचिए 21 साल की लड़की जो कि नॉर्मल अपना रूटीन में अपना हॉस्पिटल गई है, अपना जॉब पे गई है, वो नॉट हॉस्पिटल अपने जॉब मतलब जॉब पे गई है। तो और जॉब पे जाकर और उसकी मदर ने मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट थी, वो यहाँ क्लिनिक आने को तैयार हो रही थी। अचानक जो है बेटी का फोन पहुंचता है और बेटी कहती है हमें उसको किडनी की साइड में दर्द हो रहा है और देन दे रश टू द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि किडनी फेलियर हो गया है। और अचानक से सोचिए कि ये सब होना किसी के लिए भी बहुत ही एकदम से कोई भी इंसान सोच सकता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सो वो उसको हॉस्पिटल लेके गए और जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर जब ये कहते हैं किसी किडनी फेल हो गई है तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत एकदम से ऐसा था कि लाइफ में क्या हो गया उनकी। उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत सब कुछ किया। तो उन्होंने जब व्हेन शी वाज टेलिंग मी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने उनको बोला मैं कहा देखो अगर गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था कि अपने पेशेंट्स को और अपने सहेलियों को लेकर आना, तो इफ इट इज पॉसिबल कि अगर आप इस वक्त गुरुजी के मतलब एम्पायर स्टेट में गुरुजी का छोटा मंदिर है, अगर आप वहां चल पड़ो मेरे साथ। तो ऑब्वियसली देखिए एज अ मदर उनको लगा कि भाई जहाँ भी कोई हेल्प मिल सकती है, क्योंकि बच्चों के लिए तो हर पेरेंट जो है कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो वो मेरे साथ जो है एम्पायर स्टेट गए और अ, अभी भी गुरुजी ने झोला छोड़ दिया था तब की बात है। और उन्होंने वहाँ लंगर प्रसाद किया, गुरुजी से जो भी प्रे किया उन्होंने, और उनका बेटी का ट्रीटमेंट चला। और कुछ टाइम के बाद मुझे उन्होंने फिर फोन करके बताया कि डॉक्टर साहब जो भी ट्रीटमेंट होना था, जो भी कुछ होना था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब उनकी जो है डॉटर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही एक और जो किडनी से रिलेटेड है तो इसलिए मुझे आज ये सत्संग भी याद आ रहे हैं। ऐसे मेरी एक और मेरी नेबर भी थे, मेरे पेशेंट भी थे। उनकी बेटी का भी पता चला कि अचानक से उनकी बेटी की खाली एक ही किडनी है। और जो नॉर्मल उसके पेट में दर्द था, वो अल्ट्रासाउंड कराने गए और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन्होंने पता चला कि उनकी तो एक ही किडनी है। तो खैर एनीवेज, तो अब उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो जब मेरे पास आना शुरू हुए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ना मास प्रेयर करवा सकते हो। तो मैंने कहा मास प्रेयर कैसे? कहते हैं जो बेटी है वो इनमें चलती है ना, ये जो
भगवान बुद्ध जो होते हैं इनकी बुद्धिज्म के अंदर, तो कहते हैं ये लोग मास प्रेयर करते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप भी ना मेरी बेटी के लिए मास प्रेयर करवाओ, जितने आपके ग्रुप्स हैं सब कुछ आप भेजो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जितना हो सकेगा वो कर दूंगी, लेकिन क्या आप गुरुजी को मानकर उनसे एक बार प्रे करके उनसे हाथ जोड़ के आप प्रे कर सकते हो? तो देखिए एज अ मदर तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी बोलोगे मैं करूंगी। तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था मेरे क्लिनिक पर, उनको मैंने बोला देखिए आप गुरुजी को प्रे करो और आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि देखिए कोई भी भगवान का कोई भी प्रेयर जो है वो कभी खाली नहीं जाती, और कोई बुराई नहीं है। कोई गुरुजी ने भी हमें कभी कोई चीज के लिए मना ही नहीं किया कि आप किसी को मानो या ना मानो। और वो जो मदर ने भी गुरुजी के आगे प्रे किया, और उसके बाद जो है बाद में मुझे पता चला कि जो भी उस बच्चे की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। Hence, no transplant was required while she was in hospital. Guruji's devotee also gave out his photographs to other patients. They got cured and were released from hospital. After Promila was cured, Guruji asked her to come to him only once a week. तो फिर जब आंटी देखिए ठीक हो जाती हैं और उन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो अब फिर उन्होंने फिर गुरुजी ने यही कहा कि जैसे वो पूरे 4 दिन जाया करते थे कि अब आपको हफ्ते में एक बार अब आना है। और इसी से मुझे एक और सत्संग ध्यान आ रहा है कि मेरी कुक हुआ करती थी। अ, तो उसकी पता चला कि एक बार मैं ऐसी वॉक कर रही थी, तो समहाउ किसी रीजन से उसने फिर काम छोड़ दिया था। तो ठीक है, तो अचानक मैं एक दिन वॉक कर रही थी रात को, तो देखा कि ओल्ड लेडी है, वो स्टिक पकड़कर आ रही है। तो जब वो मेरे पास में आई तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा अरे तुम्हें क्या हुआ? तो वो मेरी वो कुक थी। तो जबकि वो बहुत सुंदर है देखने में, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्शन का फेयर और बहुत, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सो मैं देख के हैरान हुई कि इसको अचानक क्या हुआ, मतलब ये तो बिल्कुल एक ओल्ड लेडी की तरह लग रही है, स्टिक पकड़ के चल रही है। तो कहती है मैडम आपको पता चला मेरी बेटी के बारे में? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो कहती है कि मैम उसकी जो है ना, अरे सच्ची वो बच्ची मेरे सामने ही बड़ी हुई है, और पता चलता है कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। और मेरे को तो इतना शॉक लगा, क्योंकि जो बच्चा आपके सामने हो और अचानक से इसको ये हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था और वो केक देने आई थी घर पर, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद खैर एनीवे मैंने कहा कोई नहीं, आप चिंता नहीं करो। मैंने उसको फिर बोला, मैं कहा देखो तुम्हें तो पता है मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ, तो आप एक काम करो, गुरुजी से आप प्रे करो। तो अब गुरुजी से आ, उन्होंने कहा कि मैम गुरुजी से तो मैं प्रे करूंगी, लेकिन आप प्लीज मतलब कुछ हेल्प कर सकते हो पैसों की? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो कहने लगी मैम मैं अपनी बेटी को, क्योंकि वो पहले आई थिंक एम्स लेके गए, वहां उसको ट्रीटमेंट ठीक नहीं लगा, और उसकी बेटी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई। तो उसको ये लगा कि पता नहीं मेरी बेटी को, उसको बचाना है अपनी बेटी को। तो उसने जो है वो अपनी बेटी को उसी वक्त जो है गंगाराम ले गई, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, और वो गंगाराम लेके चली गई। अब देखिए गंगाराम तो मतलब जो है वहाँ पे तो कॉस्टली बहुत है। क्या ये ट्रीटमेंट तो कहीं भी आप करवाओगे, गवर्नमेंट भी करवाओगे तो भी बहुत कॉस्टली है, और गंगाराम में बहुत कॉस्टली, तो आई थिंक 12 लाख रुपीज उन्होंने खर्चा बताया। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी फीस भी छोड़ दूंगा, अपनी फीस भी छोड़ दूंगा, तो भी कहीं ना कहीं बहुत खर्चा आने वाला है। तो 8-9 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। तो उसने कहा मैम कि आप इसका कुछ करवा सकते हो, मतलब कितना आप हेल्प कर सकते हो? तो देखिए इतना बड़ा अमाउंट था। तो मैंने फिर यही किया, मैंने फेसबुक पे डाला, मैंने सारे ग्रुप्स में डाला। आप संगत जी बिलीव में कि मेरे एक एक मेरे पेशेंट ने जितना वो दे सकते थे उसको दिया। और ऐसे ही गुरु जी के एक मंदिर में सेवादार हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर फंड होता है वहां से कुछ करवाया, जितना हो सकता था। आई थिंक हम लोगों ने 3.25 लाख या 3.5 लाख रुपए करके ऐसा कहीं उसको वो दिया, और उसकी बहुत लोगों ने उसकी मदद की। तो और उसके बाद उसके ऊपर यही था कि हमारे घर में सत्संग था, और डेफिनेटली उसको मैंने मैसेज करवाया था, लेकिन वो किसी वजह से आ नहीं पाई क्योंकि अपनी बेटी की अ, उसमें लगी हुई थी वो। और तो मेरे को बड़ा दुख लगा, मैंने कहा कि काश उसके पास लंगर पहुंच गया होता। और तो होता है ना मन में वो होता है कि लंगर गुरु जी का कोई मतलब खा ले तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगी। तो बस मेरे मन में था, मैंने कहा वो आज अगर उसने गुरु जी का लंगर कर लिया होता ना, तो मेरे मन में ऐसा विश्वास था कि शायद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन लंगर तो पहुंचा ही नहीं उसके पास, तो मन में कहीं मेरे ना थोड़ा सा ऐसे अलग अलग ख्याल से आ रहे थे।
तो फिर मैंने और बाद में ना मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, "भई आप आए क्यों नहीं? मुझे बताते नहीं आ पा रहे थे, मैं लंगर भिजवा रही थी।" तो कहती है, "मैम सर ने ऑलरेडी लंगर भिजवा दिया। यहाँ पे हम जितने भी सर्वेंट क्वार्टर्स हैं सब हैं, सर ने सबके घर में लंगर भिजवाया है।" तो मुझे इतनी खुशी हुई और एक ना मतलब होप, मेरे एकदम आशा की किरण जागी कि गुरुजी इसको ठीक करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने कहा, "भई आप ना मंदिर में, बड़े मंदिर जाओ, माथा टेको।" तो उसने आई थिंक वहां भी सबसे अरदास लगाई और फिर वो गुरुजी के मंदिर गई, लोटा ब्लेस करवा के वो लेकर आई। और उसके बाद देखिए उसने अपनी बेटी को वो जल पिलाया जो भी था। और उसने अपनी, क्योंकि वो मदर की किडनी पेरेंट्स की नॉर्मली मिल जाती है, उसने अपनी एक किडनी जो होती है अपनी डॉटर को डोनेट की। और आज उसकी बेटी जो है बिल्कुल ठीक है। सो जब भी उससे बात होती है तो वो यही कहती है कि मैम जो कुछ किया गुरुजी ने किया। और सच में संगत जी बस वही है कि वो भावना, और जबकि वो पहले गुरुजी को इतना मानती नहीं थी, कई सालों से हमारे घर में काम कर रही थी, लेकिन उसको इतना विश्वास, वैसा विश्वास नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली जब ये सब हुआ, उसकी बेटी बच गई और अब बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मैरिज भी हो चुकी है। सो कितना शुक्राना है गुरुजी का। देखिए तो संगत जी लंगर प्रसाद में जो है ना, बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। तभी कहा जाता है कि जो लंगर प्रसाद है कि इसको प्लीज आप इसको लंगर प्रसाद को मतलब पूरा खत्म करिए। और जो कि हम ये चीज नहीं करते हैं। सो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। After Promila was cured, Guruji asked her to come to him only once a week. Coming to Guruji every day had been wonderful, but Guruji wanted a new people to be blessed. But seeing him even a once week fulfills her. She says a single langar meal is sufficient to bolster her for the week, and her batteries get charged during that one brief visit. So ये सत्संग it was narrated by Mrs. Pramila Mehta. तो संगत जी देखिए वही बात है कि जो लंगर प्रसाद है ये इतना डिवाइन है, इतना ज्यादा पावरफुल है, जैसे आंटी ने भी लिखा है इसके अंदर कि आपको वो एक हफ्ते में भी खाते थे ना तो भी बहुत है। अब गुरुजी ने हमें भी कह दिया था कि डॉक्टर अब 15 दिन में एक बार। तो अब हमें लगता था कि नहीं नहीं गुरुजी हम तो आना है, हम तो आना है। लेकिन देखिए मेन थिंग है कि गुरुजी से जुड़ना। और जब गुरुजी से हम लोग जुड़ गए हैं, और अगर हम जुड़े हैं तो गुरुजी की भी मानना, जो कि हम नहीं मानते। तो हमें गुरुजी का मानना ये है कि हम कहते हैं कि कैसे उनको माने, हम मान तो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गुरुजी की बातें हमें सिखाई हुई है कि लंगर प्रसाद अगर वहीं खाओगे तो दवाई है, बाहर जाके खाओगे तो मिठाई है। और लोग कितना होता है कि इसको पैक करा के ले जाते हैं। मतलब अगर तो वाकई किसी से नहीं खाया जा रहा है या कुछ और रीजन है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कोशिश यही करिए कि लंगर अपना प्रसाद जो आपको मिल गया तो प्लीज आप वही खाइए। और मैं इसके साथ एक और छोटा सा आज अपना शेयर करना चाहूंगी कि ये शायद इस लंगर प्रसाद का अ, ही फल है जो मैंने गुरुजी के आगे खाया। बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि आज जो है मैं आप सबके सामने गुरुजी के सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो आज का ही दिन था। आई थिंक टुडे टुडे इज 13 अक्टूबर। मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो आज का ही दिन था जब गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी थी। और जिस दिन जब गुरुजी ने ये जब हमें लंगर प्रसाद कराया था, वो जो 2 तारीख की रात थी। और जब हम लोग पूरा हमारा पेट भरा हुआ था, बच्चों का जन्मदिन था। सो मैं कट शॉर्ट करके बता रही हूँ। सो जब गुरुजी सब सेवादार पूछ रहे थे कि आंटी लंगर किया, और मैं सबको मना कर रही थी। उसके बाद जब गुरुजी मेरे से पूछते हैं कि लंगर किया, तो मैं किचन में गई और सेवादार अंकल को बोला, अंकल एक चपाती प्रसाद देना प्लीज, बहुत पेट भरा हुआ है, हम लोग नहीं खा पाएंगे। और देखिए जब लंगर प्रसाद आता है तो डेट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। अब गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और हम लोगों को डबल लंगर प्रसाद खाना पड़ा, क्योंकि गुरु महाराज जी के आगे ना तो किसी को दे सकते थे ना कुछ कर सकते थे। और कोई और बैठे भी नहीं थे, सिर्फ मेरी फैमिली थी। और हम चारों को वो लंगर प्रसाद पूरा खाना पड़ा, और दैट वाज डबल लंगर प्रसाद। तो देखिए क्या मेरी हिम्मत थी कि मैंने उसको पैक कर लिया, या उसको हमने कहा कि बाद में खा लेंगे, छुपा के मैं लेकर आ गई, नहीं। क्योंकि जब महाराज सामने बैठे थे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और हम धीरे धीरे उसको खाते रहे। तो हम ये मान के क्यों नहीं चलते कि गुरु महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं। अगर आप ये मानते हो कि महाराज जी सामने बैठे हैं, आप सत्संग में इसीलिए जा रहे हो ना। वहां पे खाना खाने तो जा नहीं रहे, या कोई पार्टी करने तो जा नहीं रहे, हम वहां पे लंगर करने जा रहे हैं, लंगर छकने जा रहे हैं। तो अब देखिए वो डबल लंगर प्रसाद में शायद वो ब्लेसिंग छुपी थी जो गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ मेरे को दी। और जब मेरे को 2010 के अंदर डेंगू हो गया था, और डॉक्टर्स ने जिस दिन ये कह दिया था कि मेरे हस्बैंड को बुला के कहा था कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, आप जाके मिल लो। और वो बाहर खड़े थे और एक डॉक्टर आते हैं
और फिर मेरा हालचाल पूछते और अंदर आके मुझे कहते हैं बोलो जय गुरु जी, और आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो ये थोड़ा शॉर्ट करके सुनाया संगत जी। सो अब जब ये उन्होंने बोला, और देखिए जय गुरु जी में कितनी ताकत थी कि मैं आज आप सबके सामने जो है ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और जिस दिन गुरु महाराज जी ने वो लंगर हमें करवाया था उस रात को, और काफी सारी बातें की थी, और मेरे अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। और उसके बाद देखिए जो यमराज जी हैं वो मेरे पीछे भाग रहे थे, मतलब ये मैं 2010 में वापस आ गई। उस दिन मेरी लाइफ गुरु जी ने दी। और क्योंकि डॉक्टर्स ने क्या दिया था कि मे बी मिरेकल है जो ये बच गए हैं, लेकिन 10-12 दिन का जो है रिलैप्स पीरियड होता है, तो बहुत ध्यान रखना है इनका। और उसी दौरान मुझे जो है एक ड्रीम आता है कि यमराज जी जो है मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, मैं उनसे भाग रही हूँ। और भागते भागते अपनी मदर के यहाँ चली जाती हूँ। तो एक सरदार अंकल वहां पे खड़े हुए हैं, उनको मैं कहती हूँ अंकल मैं आपसे किराए की बात बाद में करूंगी, मेरा नाम और मोबाइल नंबर जो है आप लिख लो। तो वो अंकल को मैं जैसे ही बात बोलती हूँ कि आप मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, क्योंकि मेरे को काफी सालों से ये बात समझ नहीं आई थी कि जब गुरुजी ने कहा था कि काम डॉक्टर मेरा काम करवा देना, और फिर कहते हैं कि काम दिक्कत का हो गया, तो गुरुजी ने मेरा नाम और मोबाइल नंबर क्यों लिखा था। तो अ, तब मैं ये सोचती हूँ कि एकदम से मेरे को ध्यान आता है कि एक बार गुरुजी ने ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर ऐसे ही अपने हाथों से लिखा था। तो ये जब मैं सोच ही रही होती हूँ, तो यमराज जी एकदम से कहते हैं ओहो, इस एकदम से मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं ओहो, इस गुरुजी ने मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। तो मैं इनकी तरफ फिर देखती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। तो फिर वही बोलते हैं इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए, और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो इट मीन्स के जिस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, और हमें जो डबल लंगर प्रसाद कराया था, तो वो अपने कहते हैं ना अपने यहाँ पर मुझे एंट्री दे दी थी। और कहते हैं ना यमुना नेड़े आवे। तो अगर गुरुजी महाराज जब तक नहीं चाहेंगे तो यमराज भी आपको छू नहीं सकता। और ये खुद मैंने आपको सत्संग कितनी बार मैंने चीज शेयर की है। सो वो जो दिन था जिस दिन मेरे को लाइफ मिली, और वो शायद आज का ही दिन था, आज का ये कल का था, क्योंकि मुझे याद है कि उस दिन 16 अक्टूबर की दिवाली थी और 14 को धनतेरस को मैं अपने घर आई थी। तो आई थिंक वो 13 अक्टूबर ही था जब मेरे को गुरुजी ने लाइफ दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज ये दिन ही सत्संग शेयर करवाने के लिए, मुझे नई लाइफ देने के लिए। और गुरुजी सबको सबको बहुत बहुत ऐसे ही ब्लेस करें। बहुत बहुत ब्लेसिंग सबको। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आंटी, ये जो आपने आज बताया कि 13 अक्टूबर ही वह महत्वपूर्ण दिन था, ब्लेस डे था, जब महाराज ने हाँ जी। आप पर इतनी कृपा की थी, तो ये तो आज का संयोग ही रहा कि आज की सेवा आपके ही खाते में लिखी थी। ये संकल्प मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ इस बात की कि वो चीज कैंसिल हो गई है। हमने करना कुछ और था, पढ़ना कुछ और था, और गुरुजी मैंने थोड़ा सत्संग करवा के और कैसे मुझे याद दिलाया कि आज आज का ही वो दिन है, सो और कैसे सच में ही संयोग ही बना। तो देखिए वो गुरुजी महाराज सब करते हैं कि कैसे वो दिन पर्टिकुलर चुना। सो सच में बहुत शुक्राना गुरुजी। नो वर्ड्स, मैं अंकल क्या बोलूं गुरुजी के बारे में। बस ये कि हम इतना गुरुजी पे पूरा फेथ रखें। और जैसे लंगर प्रसाद का मैंने बताया, वो लंगर प्रसाद जो हमने पूरा खाया, शायद उसी में मेरी ब्लेसिंग थी, उसमें मेरे को गुरुजी ने लाइफ दी थी। जी सो आंटी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर भाव से आपने रीडिंग सेशन किया, और अपने अपने सत्संग के थ्रू भी आपने मैसेजेस दिए संगत को। गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर बना रहे। इसी जी के साथ ही आंटी आंटी और गुरु जी महाराज से हम सब गुरु संगत आज्ञा लेंगे।